Hello student, welcome back to my channel. Today's class we are going to discuss the types of comparator. There are two type of comparator. First, zero reference or zero crossing comparator. Second, non-zero reference comparator. It also called as a limit detector. So let's come to the basic of comparator. You know that comparator is used to compare the input voltage applied to the inverting terminal and non-inverting terminal of the operational amplifier, and accordingly it will produce an output as a plus Vsat, minus Vsat or 0. When the input voltage applied to the non-inverting terminal is greater than the input voltage applied to the inverting terminal, you will get the output as a plus Vsat, or you can say that V plus is greater than V minus, you will get the output as a plus Vsat. और सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो, जब पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर रहेगा तो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा. कैसा पॉजिटिव वोल्टेज? तो पॉजिटिव सैचुरेशन आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. When the inverting terminal voltage is greater than the non-inverting terminal voltage, you will get the output as a minus Vsat. It means V minus is greater than V plus, you will get the output as a minus Vsat. आप बोल सकते हो जब निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल से तो यू विल गेट द आउटपुट एज अ माइनस Vsat. निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर है तो माइनस आउटपुट, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर है तो प्लस आउटपुट. When both the input voltage are same applied to the non-inverting terminal of operational amplifier and inverting terminal of operational amplifier, the operational amplifier produce a zero output. तो आसान शब्दों में बोला जाए तो जब आप लोगों का पॉजिटिव टर्मिनल का इनपुट वोल्टेज ज़्यादा रहेगा यू विल गेट द प्लस Vsat. जब निगेटिव टर्मिनल का इनपुट वोल्टेज ज़्यादा रहेगा यू विल गेट द माइनस Vsat. व्हेन बोथ द इनपुट वोल्टेज आर सेम यू विल गेट द आउटपुट एज अ 0. ओके तो ये तरीका सिर्फ आप लोगों को याद रखने के लिए. अभी हम लोग आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कंपैरेटर की तरफ. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ कंपैरेटर, that is zero reference or a zero crossing comparator. So why this comparator name is given as a zero reference or a zero crossing comparator? Because your input voltage is always going to be compared with a zero potential, ground potential. And in this type of comparator, one of the input terminal of the operational amplifier is grounded. तो इस सर्किट डायग्राम में हम लोगों ने इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या किया है? ग्राउंड किया है. और इनपुट वोल्टेज कहाँ पे अप्लाई किया है? तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अप्लाई किया है. तो इनपुट वोल्टेज हमेशा किसके साथ कंपेयर होने वाला है? तो 0 वोल्ट के साथ कंपेयर होने वाला है. तो 3 चांसेस बनते हैं. इट मे बी इनपुट वोल्टेज ग्रेटर दैन 0, इनपुट वोल्टेज लेस दैन 0 एंड इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 0. You know the concept of comparator. Same concept you have to use in this case as well. Okay, there is a no change. द इनपुट वोल्टेज बड़ा रहेगा, इनपुट वोल्टेज 0 से बड़ा रहेगा. मतलब कौन से टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर है? पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर है. जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर रहता है बच्चों इन्वर्टिंग टर्मिनल से, तब आप लोगों को आउटपुट प्लस Vsat. तो यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है? तो प्लस Vsat मिल रहा है. मतलब इनपुट वोल्टेज क्या है? तो 0 से ग्रेटर है. When the input voltage is less than 0, so in this case input voltage क्या है? कम है. मतलब कौन ज़्यादा है? 0 बड़ा है. 0 बड़ा है मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज बड़ा है, निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज बड़ा है. जब इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर रहता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से, देन यू विल गेट द आउटपुट एज अ माइनस Vsat. So Vout is equal to minus Vsat. Now come to next, input voltage is equal to 0. It means non-inverting terminal voltage is equal to the inverting terminal voltage. When both the input voltage are same, you will get the output as a 0. Clear with this 3 comparison point in case of a zero reference and zero crossing comparator. Now come to the one of the important point in this case. The value of input voltage at which the output switches high to low or vice versa is called as a trip point or a threshold or a reference point of a comparator. In this case, the input voltage is always compared with a 0 volt.
और 0 वोल्ट के साथ कंपेयर होने के बाद सपोज इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट से ज़्यादा रहेगा, यू विल गेट द आउटपुट एज अ प्लस वी सेट. इनपुट वोल्टेज 0 से कम रहेगा तो यू विल गेट द आउटपुट एज अ माइनस वी सेट. तो स्टेट कब स्विच होगी? जब इनपुट वोल्टेज 0 से एक तो बढ़ेगा या इनपुट वोल्टेज एक तो 0 से क्या होगा, कम होगा. सो इट विल चेंज इट्स स्टेट टू प्लस वी सेट एंड माइनस वी सेट. कौन से वोल्टेज को रेफरेंस रखा गया है? तो यहाँ पे 0 वोल्ट को रेफरेंस रखा गया है और उस वोल्टेज को या उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ट्रिप पॉइंट, threshold point, also called as a reference point of the comparator. In this zero reference or zero crossing comparator, what is your trip point? Your trip point is 0. जैसे ही आप लोगों का इनपुट वोल्टेज 0 से इंक्रीज होता है तो आपका आउटपुट कहाँ पे चला जाएगा? तो प्लस वी सेट पे चला जाएगा. देखो जैसे ही इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो यू विल गेट द आउटपुट एज अ प्लस वी सेट. जैसे ही आप लोगों का इनपुट वोल्टेज 0 से डिक्रीज हुआ, 0 से डिक्रीज हुआ मतलब निगेटिव में गया, तो यू विल गेट द आउटपुट एज अ माइनस वी सेट. सो इट स्विचेस इट्स स्टेट टू पॉजिटिव और अ निगेटिव. कौन से पॉइंट में स्विच कर रहा है? तो जब 0 से वो बढ़ रहा है या 0 से वो कम हो रहा है तो वो स्टेट को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. वैसे पॉइंट को क्या बोला गया है? ट्रिप पॉइंट, थ्रेशोल्ड पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट. फॉर द जीरो रेफरेंस और अ जीरो क्रॉसिंग कंपैरेटर, ट्रिप पॉइंट, थ्रेशोल्ड पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट इज नथिंग बट इक्वल टू 0 वोल्ट. क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. In this type, if the sine wave input is applied, the square wave can be obtained at the output. Therefore, it is called as a sine to square wave converter. तो ये किस तरीके से वो मैं आपको बताती हूँ. So concentrate to this waveform. This is a sinusoidal signal we guys are applying as a input to the comparator. Okay? Sine waveform apply कर रहे हैं. In this case, the trip point, threshold point or a reference point is the 0 volt. After the 0 volt, the comparator changes its state to plus V set and minus V set. तो जैसे ही इनपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे 0 वोल्ट है. इस हॉरिजेंटल लाइन पे कितना वोल्टेज है? तो 0 वोल्ट है. जैसे ही आप लोगों की साइनोसॉइडल वेव फॉर्म 0 से इंक्रीज होती है, दैट मीन्स योर इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0. जैसे ही इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0 होता है बच्चों, तो आपको कैसा आउटपुट मिल रहा है? यू विल गेट द आउटपुट एज अ प्लस वी सेट. तो जैसे ही इनपुट वोल्टेज बढ़ा, 0 से बढ़ा, तो आप लोगों को आउटपुट क्या मिला उस टाइम पे? यू विल गेट द आउटपुट एज अ प्लस वी सेट. तो जब तक आप लोगों का इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0 था तो आप लोगों को तब तक आउटपुट क्या मिल रहा था? प्लस वी सेट. एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आप लोगों को क्या ऑब्जर्व हो रहा है? इनपुट वोल्टेज किसके बराबर है? तो इनपुट वोल्टेज 0 के बराबर है. जब इनपुट वोल्टेज 0 के बराबर है, यू विल गेट द आउटपुट एज अ 0. सो दिस वेव फॉर्म इज कम टू दी 0. तो ये वेव फॉर्म कहाँ पे आ गई? 0 पे आ गई. समझ में आया है? यहाँ पे देख सकते हो जो इनपुट वोल्टेज है, अभी इनपुट वोल्टेज क्या हो रहा है? तो निगेटिव में जा रहा है. मतलब इनपुट वोल्टेज इज लेस देन, निगेटिव में जा रहा है मतलब इनपुट वोल्टेज 0 से भी कम हो रहा है. जब इनपुट वोल्टेज 0 से भी कम होता है मतलब 0 वोल्ट इज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, यू विल गेट द आउटपुट वोल्टेज एज अ माइनस वी सेट. तो आप लोगों को आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है उस टाइम पे? माइनस वी सेट मिल रहा है. कब तक माइनस वी सेट मिलेगा? जब तक आप लोगों का इनपुट वोल्टेज फिर से क्या नहीं हो जाता? 0 वोल्ट नहीं हो जाता. जैसे इनपुट वोल्टेज 0 वोल्ट हो गया, इट कम बैक टू दी 0 आउटपुट. Again in this case the input voltage is greater than 0 volt, you will get the output as a plus V set. तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो कंपैरेटर है वो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को, साइन वेव को किस में कन्वर्ट करता है? तो स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करता है. इसीलिए कंपैरेटर को क्या बोला जाता है? साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर. होप सो यू गाइज आर क्लियर विथ दिस. नाउ कम टू द नेक्स्ट कंपैरेटर. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टाइप, मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे हमने ग्राउंड पोटेंशियल किसको किया है? तो इन्वर्टिंग टर्मिनल को किया है. द सेम जीरो रेफरेंस जीरो क्रॉसिंग कंपैरेटर में आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को भी ग्राउंड पोटेंशियल पे रख सकते हो. एंड इनपुट वोल्टेज इन दिस केस अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो यहाँ पे भी आपके 3 केसेस रहेंगी. इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0, इनपुट वोल्टेज is less than 0 and input voltage is equal to 0.
व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0, इनपुट वोल्टेज ग्रेटर है मतलब कौन से टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर है, यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर है। जब इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर रहता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से, यू विल गेट द आउटपुट एज अ माइनस Vsat। When input voltage is less than the 0, इनपुट वोल्टेज कम है मतलब कौन सा वोल्टेज ज़्यादा है, 0 वोल्ट ज़्यादा है, वो कहाँ पे अप्लाई किया है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है। जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर रहता है इन्वर्टिंग टर्मिनल से, यू विल गेट द आउटपुट एज अ प्लस Vsat। एंड वेन बोथ द इनपुट वोल्टेज आर इक्वल, इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 0, आप लोगों ने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी कितना वोल्टेज दिया है, तो 0 दिया है, मतलब दोनों भी इनपुट्स वोल्टेज क्या है, तो सेम है। एट दैट टाइम यू विल गेट द आउटपुट एज अ 0। तो ये तो सबसे आसान केस है, इन दोनों इसमें आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। जब पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है, इट मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है, तो हमेशा आपको आउटपुट मिलेगा प्लस Vsat। जब इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब निगेटिव टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा है, तब आपको मिलेगा माइनस Vsat। जब दोनों भी सेम है, यू विल गेट द आउटपुट एज अ 0। ये चीज़ सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कंपैरेटर, नॉन ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर, also called as a limit detector। Last comparator, your input voltage going to compare with a 0 volt. In this case, your input voltage going to compare with a non-zero input voltage. Okay, and that voltage is considered to be as a reference voltage. So come to the theory. In this type, the trip point is equal to the reference voltage. दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ रेफरेंस वोल्टेज, कैन बी 2 वोल्ट 4 वोल्ट, वो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, बट इट इज़ अ नॉन जीरो वोल्टेज। व्हेन द इनपुट वोल्टेज स्लाइटली मोर देन द रेफरेंस वोल्टेज, द आउटपुट गोज इनटू अ पॉजिटिव सैचुरेशन, राइट। व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर, इट मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर, ओके, दैन द इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज। और जब पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर रहता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ग्रेटर रहता है, तो यू विल डेफिनेटली गेट द आउटपुट एज अ प्लस Vsat। When the input voltage slightly less than the reference voltage, output goes into a negative saturation. That means input voltage is less. It means the reference voltage is greater. जब रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा रहेगा मतलब निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है, तब आउटपुट हमेशा क्या मिलता है बच्चों, हमें माइनस Vsat मिलता है। सो व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लेस देन द रेफरेंस वोल्टेज, और यू कैन से दैट व्हेन द रेफरेंस वोल्टेज इज ग्रेटर देन द इनपुट voltage, you will get the output as a minus Vsat. When both the voltage are same, that is input voltage is equal to the reference voltage, you will get the output as a 0. तो ये तो क्या हो गया, हम लोगों ने रेफरेंस वोल्टेज कहाँ पे अप्लाई किया, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया, और इनपुट वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया। अभी एक्सचेंज करो, रेफरेंस वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और इनपुट वोल्टेज कहाँ पे अप्लाई किया, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया। सो सेम 3 comparisons are there when the input voltage is greater than the reference voltage, when the input voltage is less than the reference voltage, when input voltage is equal to the reference voltage। जब इनपुट वोल्टेज बड़ा रहेगा रेफरेंस वोल्टेज से, तो इनपुट वोल्टेज बड़ा है मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज बड़ा है, निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज बड़ा है, सो यू विल गेट द आउटपुट एज अ माइनस Vsat, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज बड़ा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज बड़ा है। Input voltage is less than the reference voltage, that means reference voltage is greater than the input voltage. When the reference voltage is greater than the input voltage, that means positive terminal voltage is greater, you will get the output as a plus Vsat, positive output मिलेगा। When both the input voltage and reference voltage are same, you will get the output as a 0, हमने पहले ही डिस्कस किया है। Now come to the application of comparator. The comparator is used to convert the sine waveform into a square waveform. Therefore, it is called as a sine to square wave converter. Okay. It also used in the monostable, bistable and astable multivibrator. वो कैसे use करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं IC555 में। And the last application, third application, the comparator is used as a Schmidt trigger. तो ये किस तरीके से वर्क करता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। Hope so you guys are clear with this 2 type of comparator working.
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल ऑन कंपैरेटर लेने वाले हैं। एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो लेक्चर यू कैन कमेंट मी बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर with your friends and subscribe the channel.